Okay, in today's one short lecture, we will complete ethers. Okay, let's start basic से start करते हैं एकदम. Let's start with basic representation. Ether is represent simple ether को हम कैसे represent करते हैं? ROR simple ether, symmetrical ether बोले, और RO R dash. When the two alkyl groups, if they are different, तो हम क्या बोलेंगे उसे? Mixed ether और unsymmetrical ether. ठीक है. Nomenclature क्या है people? Ethers का nomenclature is alkoxy alkane. जो छोटा alkyl group है that becomes alkoxy. The bigger alkyl group is alkane. एक और nomenclature जो तुम याद रख सकते हैं, common name nomenclature will be, अगर दोनों alkyl group similar है तो हम क्या लिखेंगे? Dialkyl ether. एंड अगर अलग है तो alphabetically alkyl ether. For example, first यहाँ पे the smaller alkyl group, ये वाला smaller alkyl group है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी. बिगर alkyl group में 2 कार्बन है तो इथेन, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा पीपल मिथॉक्सी इथेन. व्हाट अबाउट सेकेंड वन? नंबरिंग करेंगे हम ये 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे पीपल? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. यहाँ पे हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, बट द नेम दैट यू विल रिमेंबर इज, इनको हम बोलते हैं एनिसोल. इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन, और द नॉमेनक्लेचर दैट यू विल रिमेंबर फॉर दिस इज फेनेटोल. ठीक है, बेसिक नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट, कैन समवन टेल मी ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? एक्सेलेंट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, but bond angle is actually 111.7 degrees. It is because of the two bulky alkyl groups. Tetrahedral की bond angle होनी चाहिए थी 109.5, but bond angle है people यहाँ पे 111.7. Now which are the different types of isomerism? तो यहाँ पे कौन कौन से isomerism ethers बताता है? सबसे पहला, it can show chain isomerism. कुछ example लिखेंगे हम. Then chain isomerism, excellent. Second is metamerism. Third, functional group. Functional group isomerism. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, CH3 CH2O CH2 CH3, या मैंने लिखा है इथॉक्सी इथेन. CH3O CH2 CH2 CH3. This is methoxy propane. And third, CH3O CH CH3 CH3 to methoxy propane. Now मैंने नंबर करता हूँ. Let's number this as 1, this is number 2, and this is number 3. The relation between 1 and 2, 1 and 2 के बीच का रिलेशन इज दे आर मेटामर्स. 1 and 3 के बीच में भी क्या रिलेशन है पीपल? मेटामर्स. 1 and 3 are also metamers, but 2 and 3 के बीच में क्या रिलेशन है? दे आर चेन आइसोमर्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे आई कैन सी एक स्ट्रेट चेन है और यहीं पर वो चेन
that chain is branched. With me till here? ठीक है. Now, second, CH3OCH3. इसकी nomenclature क्या है people? We have methoxy methane. इसकी molecular formula if I write, so this is C2H6O. ठीक है. And I can also write with the same molecular formula a compound ethanol. And यहाँ पे we had methoxy methane. So alcohols and ethers and alcohols are functional group isomers with each other. ठीक है. With me till here everyone? चलो. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. हमारे पास यहां पे है एल्डिहाइड प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड, then this is ketone propanone, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C3H6O. Now I can make over here cyclic ether. Did you people get that? ये हमारे पास है cyclic ether. Aldehydes, ketones and cyclic ethers are also functional group isomers of each other. इसका दो तरीके का nomenclature पढ़ा था हमने, but इसको हम क्या याद रखेंगे? as simple cyclic ethers are also called as epoxy, but तीन है तो प्रोपिलीन ऑक्साइड. आज के लेक्चर में वी विल ऑल्सो डू प्रेपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर्स. साइक्लिक ईथर्स का प्रेपरेशन विल ऑल्सो डू दिस. चलो, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन. आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, एंड लेट्स स्टार्ट विथ preparations. First preparation start करते हैं. The first preparation is from alcohols. Let's try and understand this preparation. I have CH3 CH2OH, ethanol plus, I'm writing the same ethanol again, HO CH2 CH3 in the presence of concentrated H2SO4. Temperature है around 170 degree or 413 Kelvin. I think मैच थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया मैंने. 413 कितना हो जाएगा इन केल्विन? 140 डिग्री और 413 Kelvin. I was testing. Okay. Chalo. Now what happens here? This comes out in the form of water. तो हमें क्या मिला people यहाँ पे? CH3 CH2O
नाउ सेम इथेनॉल का रिएक्शन इफ वी परफॉर्म, हमने पहले भी किया है इन द चैप्टर अल्कोहल्स, यही इथेनॉल पीपल इफ आई टेक अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, बट दिस टाइम द टेम्परेचर इज 170 डिग्री और समवेयर अराउंड 443 केल्विन. यहाँ पे व्हाट डू वी गेट? वी गेट एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें मिला एथिलीन या इथीन. In both the cases, are we performing dehydration? I repeat, in both the cases, दोनों cases में हम क्या perform कर रहे हैं people? Dehydration. But let's understand what is the difference between the two. दोनों के dehydration में क्या difference है? First case में we are performing intermolecular dehydration. तो लोअर टेम्परेचर में कौन सा डिहाइड्रेशन हो रहा है? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. एंड थोड़े हायर टेम्परेचर में क्या होता है पीपल? इंटरा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. प्लीज रिमेंबर दिस. आई रिपीट, लोअर टेम्परेचर में intermolecular dehydration, slightly higher temperature intramolecular dehydration. चलो अब इसका मैकेनिज्म सीखना है हमें कि intermolecular dehydration, how is it actually taking place. So let's start. H2SO4, क्या काम है H2SO4 का? To give you H plus and H SO4 minus. ये आपका प्रोटॉन इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है? किस मॉलिक्यूल के पास? ये अल्कोहल के ऑक्सीजन से बोरोइंग लोन पेयर, यस और नो? Okay, so proton will borrow lone pair and we get CH3 CH2. पहले ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, अभी एक वो प्रोटॉन ने ले लिया है, so the oxygen develops a positive charge. ठीक है, बट ये वाली जो बॉन्ड है हम नहीं ब्रेक कर सकते. that would result into a primary carbocation. तब यहाँ पे क्या होता है? There is one more ethanol molecule and ये सब अभी simultaneously हो रहा है people. So हमारे पास एक और ethanol molecule है. ठीक है, let's try and understand this. I repeat, this is happening, all this is happening together. दो हम इसको बताएंगे multiple steps में, all this is happening in one single step. सी ऑक्सीजन को तो उसका लोन पेयर वापस चाहिए, तो ये बॉन्ड तो वो ब्रेक करना चाहेगा, बट साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन? यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है CH3 CH2, उस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा. एंड हमें तो पता है प्राइमरी कार्बोकैटायन आर हाईली, तो दैट CH3 CH2 विल गो टू ये वाला नेक्स्ट इथेनॉल से लोन पेयर बोरो करेगा. सो व्हाट वी गेट ओवर हियर? CH3 CH2O, और ये जो नीचे का लोन पेयर है वो किसने अब बोरो किया? CH2 CH3, एंड यहाँ पे देयर इज H, एंड ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ जाता है पीपल? प्लस चार्ज. एंड व्हाट डू वी हैव? H2O. यहाँ तक. सो टेल मी, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है? SN2 हो रहा है.
with me till here? Next step, what happens after this? HSO4 minus आके क्या बोलेगा? Give me my proton back. So the conjugate base HSO4 minus will come and extract H plus. तो आपको मिल गया आपका ether. And we get H2SO4. Anyone who did not get the mechanism? However, there are certain drawbacks. कोई मुझे ड्रॉबैक बता सकते हैं यहाँ पे? What do you think is the drawback of this mechanism? Major drawback क्या लगता है आपको? We can only prepare symmetrical ethers by this method. I repeat, we can only prepare simple ethers. I repeat, we can only prepare simple ethers, and that too if we use secondary alcohol or tertiary alcohol. Elimination will take place rather than substitution. So ये reaction is applicable only to, we can use only primary alcohols in the reaction. So only primary alcohols can be used in the reaction. Since secondary alcohol or tertiary alcohol will undergo elimination. Will undergo elimination reaction. Did you people get this? So for example, चलो फिर भी अगर हमने दो अलग प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, I am trying to do this reaction with two different alcohols. क्या होगा यहाँ पे? And both are primary alcohols. तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे पीपल? पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RO R डैश, ये ईथर मिला. बट एट द सेम टाइम क्या पॉसिबिलिटी है? RO R मिलने की and R dash O R dash. So the moment we use two different alcohols, it produces three different ethers. हमने सेम पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स. So this is the preparation from alcohols along with the mechanism. Let's move ahead with the next preparation. Second preparation, people, is from diazomethane. Diazomethane looks like this: CH2N2. इसका लुईस स्ट्रक्चर अगर बनाए तो कुछ ऐसे दिखेगा वो. CH2 डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N. एक ऐसे बना सकते हैं. तो ये नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1, ये नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज -1. थोड़ा अगर रेजोनेट करो तो ऐसा भी लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो. तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. दिस इज डायज़ोमीथेन. पहले थोड़ा डब्बा मैकेनिज्म से रिएक्शन अंडरस्टैंड करते हैं. तो आई हैव ROH, ये हमारा अल्कोहल है, प्लस CH2N2. ये CH2N2 इज आर डायज़ोमीथेन in the presence of, हमें H प्लस चाहिए, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड. ये CH2 ये H के साथ ये क्या बन रहा है?
So ROCH3. We get methoxy alkanes. ठीक है, आई रिपीट, क्या मिलता है पीपल? वी हैव methoxy alkane plus N2 गैस. ओके, इसका भी कोई मुझे कुछ ड्रॉबैक बताएगा? व्हाट डू यू थिंक इसमें ड्रॉबैक इज? वन ड्रॉबैक इज ओनली methoxy alkanes can be produced. I repeat, क्या बनता है पीपल? methoxy alkanes can be produced by this method. With me? चलो, if you try to understand the mechanism, ये हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है रेजोनेंस के टाइम. आई नीड H प्लस, जो मेरे पास HbF4 से आ रहा है. दैट H प्लस गोज ओवर हियर. तो क्या बन गया पीपल? वो CH3 N नाइट्रोजन पे क्या है? ना नाइट्रोजन को चाहिए लोन पेयर, ये बन जाएगा CH3 प्लस. तो कैन इट फॉर्म अ कार्बोकैटायन? नो. तो ये सब साइमल्टेनियसली होना है. सो नाइट्रोजन जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लेगा, CH3 विल टेक दिस लोन पेयर एंड वो प्रोसेस फिर से रिपीट होता है जो हमें पिछले मैकेनिज्म में किया. हमें मिला ROH एंड यहाँ पे आ गया आपका CH3 और ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? प्लस. दिस बिकम्स N2 एंड ये जो HbF4 था इसमें रहेगा आपके BF4 माइनस, विच विल अगेन एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन एंड आपको क्या मिला फाइनली? ROCH3. That's the mechanism of the reaction. ठीक है. So the second method of preparation was from diazomethane. Next, the third method of preparation, and we have done this even in haloalkanes and haloarenes. इस रिएक्शन का नाम क्या पीपल? हमारे विलियमसन सिंथेसिस. चलो, विलियमसन सिंथेसिस जनरल रिएक्शन हमारे पास है अल्काइल हैलाइड RX प्लस NaO R डैश. ये NaO R डैश क्या है पीपल? सोडियम एल्कोक्साइड. थोड़ा इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए. Na प्लस एंड O माइनस. दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड. ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है? बाय द एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल सोडियम ऑन अल्कोहल. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे RONA प्लस यहाँ से सोडियम एल्कोक्साइड बनता है. वी नीड ड्राई ईथर. तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा? डब्बा मैकेनिज्म जम करे तो NaX एंड हमें मिला ROR डैश प्लस NaX.
चलो लेट्स टेक मैकेनिज्म वाइज. अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कुछ ऐसे CH3Cl प्लस NaOCH3, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे सोडियम methoxide in the presence of pure and dry ether. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे? ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका Cl एंड बैक साइड अटैक कौन करता है? आपका न्यूक्लियोफाई. सो ये न्यूक्लियोफाई आपका कर रहा है बैक साइड अटैक. व्हाट मैकेनिज्म इज दिस? SN2. तो यहाँ पे SN2 हो रहा है, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड. सो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है एक साथ, SN2 मैकेनिज्म. एंड व्हाट डू वी गेट हियर पीपल? CH3OCH3 प्लस. अगर आप डब्बे में लिखे तो कुछ ऐसे लिखते थे, yes or no? However, अगर हमारे पास है एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड लेट्स से हमारे पास है Na sodium methoxide again in the presence of pure and dry. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होने लगता है? सिंस हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस विल अंडरगो, यहाँ पे लीविंग ग्रुप है तो सबसे पहले इसका बनेगा कार्बोकटायन. ये बन गया आपका टर्शरी कार्बोकटायन. अब इस टर्शरी कार्बोकटायन से क्या होता है? ये जो आपका न्यूक्लियोफाई होगा दैट विल, सॉरी, ये जो बेस होगा दैट विल एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन एंड यहाँ का ये जो बॉन्ड है दैट विल बी यूज्ड टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड. तो क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें? What is the first product? CH3 CH3 and double bond. ये बन गया आइसो ब्यूटिलीन. सेकेंड प्रोडक्ट मिथेनॉल एंड थर्ड प्रोडक्ट. यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हुआ पीपल? फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्मेशन एंड देन एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके रिएक्टेंट है, क्या न्यूक्लियोफाई है, either substitution will take place or elimination will take place. Do you people remember that? Not only that, haloalkanes and haloarenes में हमने किया है reaction mechanism में, if the base is bulky then the least hindered proton will be, least hindered carbon पे attack होगा, जहाँ पे Hoffman's product will be the major product. I want you to all please go through वो सारे reactions that we have done in haloalkanes and haloarenes. I repeat, छोटू base के सारे reactions and then using a bulky base. चलो. The next method is called as epoxidation, or basically formation of epoxy. cyclic ethers बनाने वाले हैं. चलो, let's say I have
ethene or ethylene, and we have हमारे पास है peroxy और an organic peroxy carboxylic acid. I repeat, हमारे पास है an organic peroxy carboxylic acid. Purposely, if you see, मैंने एक ऑक्सीजन को किया है green. The reason is the peroxy acid gives that oxygen to the alkene और हमें मिलता है cyclic ether. I repeat, ये ऑक्सीजन कहां से आया? वो ये वाला ऑक्सीजन है. Did you people get that? थोड़ा और बेटर समझने के लिए I am writing the same reaction, but यहां पे लिख दिया O18. O18 का मतलब क्या पीपल? आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिख दिया हमने. तो यहां पे कौन सा ऑक्सीजन आता है? वो O18. ठीक है. We get ethylene oxide. Any questions still here? Chalo. Now let's take some more examples in this. Let's say I have an alkene something like this. Okay, इसके 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल भी लेंगे. एंड क्या कर रहे हैं हम? अगेन वी हैव peroxy carboxylic acid. अच्छा, इसके साथ वी ऑल्सो गेट RCOH. मैंने लिखा नहीं, बट वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. यहां पे हमें क्या मिलता है पीपल? C. ये जो सेम पेरोक्सी एसिड का ऑक्सीजन तो वो आ गया यहाँ पे. एंड वी हैव RH and RH. चलिए यहाँ पे R डैश कर दें, सो इट विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश. एंड प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? R डैश COOH. नाउ the alkene that we have made, इसमें 2 पार्ट्स हो सकते हैं. We can have cis alkene, या क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे cis butene. या हमारे पास क्या हो सकता है पीपल? एक ट्रांस ब्यूटुइन. आई रिपीट, सिस भी हो सकता है, ट्रांस. एपॉक्सीडेशन इज अ सिन एडिशन. सिन एडिशन का मतलब क्या था पीपल? बोथ द एडिशन विल टेक प्लेस ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. तो अगर सिस ब्यूटुइन का हम एपॉक्सी एडिशन करते हैं, एपॉक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है पीपल? वी गेट अ मीसो कंपाउंड. क्या मिलेगा हमें? मीसो कंपाउंड. वो मीसो कंपाउंड कुछ ऐसा है. अभी ये स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, तो ये हमको मिला मीसो कंपाउंड.
Did you people get that? And if we perform the same with trans, तो trans plus in addition यहाँ पे क्या बनेगा? enantiomer, racemic mixture बनाएगा वो. तो ये पहला प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया आपका CH3, और उसी का यहाँ पे साइड में क्या होना चाहिए? अनदर मिरर इमेज. यस और नो? चलो इसका मिरर इमेज बना देते हैं हम. CH3H, both are enantiomers. बेसिकली हमें क्या मिला है? एक रेसमिक मिक्सचर. Did you people get this? Epoxidation में कोई सवाल? Now, certain peroxy acids are unstable. ठीक है? I repeat. Certain peroxy acids are unstable. So we may also use MMPP. MMPP stands for magnesium monoperoxyphthalate. So instead of peroxy, ये सेम हम MMPP भी यूज कर सकते हैं. Did you people get that? Not the exact reaction, but एक थोड़ा सा similar reaction using MMPP and peroxy acids हमने 11th में भी किया है in the chapter alkenes, जब हमने oxidation of alkenes का type किया था. So we've done the exact same reaction even over there. Did you people get this? So ये fourth method of preparation कौन सा? Epoxidation. The next method of preparation that we have is dehydration of glycol. We are now going to perform dehydration of glycol, और इसमें दो टाइप का dehydration करेंगे. First will be intramolecular dehydration. तो हमारे पास है एथिलीन ग्लाइकॉल. We are performing dehydration by using concentrated H2SO4, or we can also use paratoluene sulfonic acid somewhere around 413 Kelvin. Intramolecular dehydration, H2O. So what are we left with? Did you people get that? CH2, CH2 and this O. We get ethylene oxide. यहाँ पे हमने क्या किया? Intramolecular dehydration. We can also perform intermolecular dehydration.
इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे? I have same ethylene glycol but intermolecular करना है, so I need two of these. This is people H2O. This is also H2O. The only change in condition, instead of 413 Kelvin आप करोगे इसको ऐड 443 केल्विन में, एंड हमें क्या मिला यहाँ पे? This is called as 1,4 oxygen. Okay, intramolecular dehydration, intermolecular dehydration. With me people? अब इसके बाद एक लास्ट मेथड बचता है. The last method of preparation is using dry silver oxide. So we have alkyl halide RX plus R dash OH, alkyl halide alcohol. यहाँ पे हमारे पास है ड्राई silver oxide and we get RO R dash. यहाँ पे आप दोनों बना सकते हो, simple ether, or you can also make mixed ether plus AgX. In order to understand the reaction, क्या होता है? ROH, your alcohol R dash OH with the dry silver oxide forms just like वहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड था, यहाँ पे क्या है? ये सिल्वर एल्कोक्साइड. एंड ये सिल्वर एल्कोक्साइड R dash OAg plus with your alkyl halide, ये बन जाता है आपका ईथर. That's the reaction. Did you people get that? Any questions still here? These were the methods of preparation of ether. So these were all the methods of preparation of ethers and cyclic ethers. Now we move ahead to chemical properties, chemical reactions करते हैं अभी. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड ऑन ईथर्स. ये पीपल सबसे इंपॉर्टेंट है. सो मेरे पास है R O R या RO R dash प्लस, जैसे मैं ले लेता हूँ HI. Let's understand this mechanism wise. तो RO R dash HI में पहले कौन अटैक करेगा?
H प्लस, एंड यहाँ पे क्या बनता है ROH, ऑक्सीजन विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज, पार्डन मी, यहाँ पे मैंने I लिख दिया। अब यहाँ से देयर कैन बी टू वेज इन विच द रिएक्शन कैन डिविएट। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, कैन आई ब्रेक एनी वन ऑफ द टू बॉन्ड्स? यू कैन ओनली ब्रेक द बॉन्ड इफ इट कैन फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायन। तो अगर वो बॉन्ड ब्रेक होके स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा पीपल? SN1। इफ दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता तो आपका जो न्यूक्लियोफाई है विच इज I माइनस, दैट विल अटैक द लीस्ट हिंडर्ड कार्बन, और वो कौन सा मैकेनिज्म हो गया पीपल? SN1। तो यहां से द रिएक्शन कैन टेक टू रूट्स। वी हैव टू चेक कौन सा वो रूट लेगा, वेदर इट विल फॉर्म SN1 वाया कार्बोकैटायन मैकेनिज्म या SN2, ये हमें चेक करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। इसमें लेट्स से अगर मैंने कोई ऐसा एग्जांपल लिया तो CH3O CH2CH3, इसमें क्या ऐड किया हमने? HI। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है हमारे पास? CH3O CH2CH3, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया पीपल? यस। अब हमें चेक करना है कैन आई ब्रेक ये लेफ्ट वाला बॉन्ड? क्या ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल है? क्यों नहीं ब्रेक कर सकते इनसे? बिकॉज ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज वो भी क्या बनेगा? विच मीन्स फर्स्ट रूट तो नहीं जाएगा वो SN1 का, तो इट हैज टू गो वाया। अब क्या होगा? I माइनस विल अटैक द लीस्ट हिंडर्ड कार्बन, बैक साइड अटैक, याद है? तो आपका जो न्यूक्लियोफाई है अटैक्स लीस्ट हिंडर्ड कार्बन। यस और नो? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो है यहाँ पे फिर? SN2। फर्स्ट प्रोडक्ट मिला CH3I, एंड दूसरा हमें क्या मिला? CH3CH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास है CH3OC CH3 एक साइड पे मिथाइल है बट एक साइड में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है प्लस HI। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? यहाँ पे हम एक H लगा देते हैं तो ऑक्सीजन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। दोनों में से विच बॉन्ड विल यू ब्रेक? क्यों इसको हम ब्रेक कर सकते हैं? बिकॉज ये बनेगा स्टेबल कार्बोकैटायन, एंड कार्बन पे क्या आ गया पीपल? एंड कौन अटैक कर सकता है अभी? I माइनस। सो दोनों प्रोडक्ट क्या बनेंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दूसरा CH3। एवरीवन गेटिंग दिस? कर सकते हैं हम? प्लस HI। नाउ टेल मी इस पे क्या होगा? तो H प्लस
यहाँ पे ऊपर बनाओ या नीचे, डजंट मैटर। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, लेफ्ट और राइट? राइट बॉन्ड ब्रेक्स, बिकॉज वहां पे बनता है अलाइलिक कार्बोकटायन, और आपका अलाइलिक कार्बोकटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ? Did you people get that? ये सब आया समझ में? जब इसके साथ रिएक्शन करोगे, लेफ्ट वाला बॉन्ड या राइट वाला बॉन्ड, कौन सा ब्रेक होगा? राइट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके साथ रिएक्शन करोगे तो विच बॉन्ड विल ब्रेक? द लेफ्ट बॉन्ड और राइट बॉन्ड। ब्रेक द राइट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे बिकॉज इट विल फॉर्म अ टर्शरी कार्बोकटायन। वहां पर हम कर सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स। What about here? None. SN2, बिकॉज अगर राइट ब्रेक करने ट्राई किए तो विनाइलिक कार्बोकटायन बन जाएगा, लेफ्ट में तो प्राइमरी है, सो ये होगा वाया SN एंड both of these will take place via SN1. Did you people get that? Yes or no? So ये था action of hydrogen halide on ethers. Second, halogenation. Halogenation people chlorination करते हैं. So let's say हमारे पास है CH3, let's say we have ethoxy ethane, और इसका हम कर रहे हैं chlorination but in a dark room. तो हमें क्या मिलता है? What is the कौन सा हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। बट कहीं पे भी टर्शरी नहीं है, कहीं पर भी सेकेंडरी नहीं है, सब प्राइमरी है। बट अगर मैं ये वाला फ्री रेडिकल देखूं, करेक्ट, तो हम बोल सकते हैं ये वाला फ्री रेडिकल हो सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यस और नो? वो मोनोक्लोरिनेशन किया। इफ वी डू इसका क्लोरिनेशन अगेन, तो क्या मिलेगा पीपल? CH3 you get something like this. Okay, now if you perform the same chlorination but this time in the presence of sunlight, and let us assume यहाँ पे अभी chlorine is in excess, तो हमें क्या मिलने वाला है? Every hydrogen will get replaced by chlorine
पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर. सो डार्क में मोनोक्लोरिनेशन, सनलाइट में एक्सेस में कर दो तो व्हाट विल इट डू? इट विल रिप्लेस ऑल. नेक्स्ट, हैलोजनेशन के बाद the third reaction that we have is called as oxidation of ethers. I'll take the same ether, diethyl ether. We are performing oxidation in the presence of sunlight. हमें यहाँ पे मिलता है this is called as ether hydroperoxide. So you can say this is diethyl ether hydroperoxide. Let's understand this थोड़ा सा. This is also free radical. तो अगर हमें मैकेनिज्म थोड़ा समझना है उसका, so this is O2. होमोलिटिक फिजन. आपका जो ये ईथर है उसका फ्री रेडिकल कुछ ऐसे बनता है, CH3CH. ये बन गया आपका हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल. ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल एंड ये O2 का फ्री रेडिकल. This becomes OH and ये free radical gets bonded here, जहाँ से आपको मिल गया आपका ether hydroperoxide. Next we have acid catalyzed opening of cyclic ethers. ये भी हमने ऑलरेडी किया है पहले in reaction mechanisms in the form of SN1 and SN2 mechanism. Acid catalyzed opening of cyclic ethers. So let's say we have something like this. Okay, हमारे पास एक मिथाइल एपॉक्सी ईथर है and acid catalyzed. So I need acid. हमारे पास H2SO4 है और just H plus and I have एक solvent but थोड़ा सा specific हो रहा है where I have an isotopic oxygen. Now first step in acid catalyzed opening, प्रोटॉन किसके पास जाने वाला है? ऑक्सीजन. वहां से एक लोन पेयर बोरो कर लिया. ऑक्सीजन विल डेवलप अ प्लस चार्ज. ऑक्सीजन वांट्स इट्स लोन पेयर्स बैक. 2 लोन पेयर थे, अब एक ही बचा. तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास क्या है? OH. ना वो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ गए, बट दिस कार्बन गेट्स अ विथ मी प्लस. अब कौन है? H2O. और इसमें ऑक्सीजन इज वेरी स्पेसिफिक. दिस इज
आइसोटोपिक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आया क्या मिला पीपल यहाँ पे, ओ एच, अब यहाँ पे है आपके वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन, एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस कहाँ से मिला था हमें, H2SO4 से, H प्लस एंड कॉन्जुगेट बेस उसका HSO4, so what will HSO4 minus do, HSO4 minus extracts a proton, और ये electrons will come back as, हमें क्या मिला वो, Did you people get that? सिंपल वे में लिखना है तो OH CH2 CH CH3 एंड यहाँ पे आपका वो एसिड कैटेलाइज्ड ओपनिंग में जो द मोस्ट क्राउडेड कार्बन है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसे याद रखना। बेस कैटेलाइज में क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक लीस्ट हिंड्रेड, अब इसके आगे जो करेंगे, बट एसिड कैटेलाइज्ड में द मोस्ट क्राउडेड कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब यही सेम इंस्टेड ऑफ एसिड कैटेलाइज अगर हम करें उसे विथ बेस कैटेलाइज्ड ओपनिंग ऑफ cyclic ethers. So base catalyzed में again let's say I have the same methyl epoxy ether, but base catalyzed में यहाँ पे क्या है, फिर हमारे पास एक बेस है OH माइनस, न्यूक्लियोफाई, पार्डन मी न्यूक्लियोफाई, एंड ये भी आइसोटोपिक ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ओके 18 isotopic, and then again we need H2. अब यहाँ पे क्या होता है, the nucleophile will attack least hindered carbon, तो कौन है आपका least hindered carbon यहाँ पे, तो आपका जो nucleophile है that will attack ये वाला कार्बन, यस और नो, एंड क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाउ गो टू ऑक्सीजन, विथ मी, एंड इसके नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके सॉल्वेंट से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड क्या बना फिर, सेम प्रोडक्ट है, वी हैव CH2OH CH, this is base catalyzed opening of cyclic ether. ये अब सेम रिएक्शन बहुत बार कर चुके हैं इन डिफरेंट वेज, वी डन दिस इन अल्कोहल्स भी, सेम ईथर ले लिया, बट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में वी नो दैट द अल्काइल ग्रुप is in the form of a carbanion
मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाई हो गया. वेयर विल दैट न्यूक्लियोफाई अटैक? वो न्यूक्लियोफाई फिर अटैक करता है एट द लीस्ट हिंडर्ड कार्बन. फिर वो सेम ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पर, एंड सेम देन ऑक्सीजन विल एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ सॉल्वेंट. Did you people get that? Same base catalyzed opening of cyclic ether हम ऐसे पढ़ सकते हैं. Any questions over there? चलो. Next reaction. Reaction of ethers with phosphorus halides. यहाँ पे हमने क्या लिया? phosphorus pentahalide. तो ले लेते हैं, let's say phosphorus pentachloride. प्लस PCl5 क्या देता है हमें? 2 CH3CH2Cl प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. इसे हमने अल्कोहल्स में किया है, PX3 PX5 thionyl क्लोराइड. ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Did you people get that? Any questions? Okay. Now, next we have to do all the electrophilic substitution reactions of anisole. But before we directly jump into electrophilic substitution reaction of anisole, anisole का directive nature समझने की कोशिश करते हैं. एनिसोल का जब हम रेजोनेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजीशन पे इंक्रीज होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट दी ऑर्थो पोजीशन, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है एवरीवन? एट दी para position, and then again electron density increases at the ortho position, second ortho position जो है, and finally electron density increases at the, सॉरी मैंने एक गलती की है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना भूल गया. सो ऑक्सीजन विल डेवलप अ एंड फाइनली जो लोन पेयर थे वो ऑक्सीजन को उसको लोन पेयर्स फिर मिल जाएंगे. What does this tell you people? That anisole is a ortho para directing group. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है that will be directed to ortho position और para position, and major product हमेशा होगा हमारा इसमें para. So let's start with nitration.
नाइट्रेशन में हम नाइट्रेटिक मिक्सचर लेते हैं. कोई बोलेगा नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या था? ये रहा हमारा एनिसोल प्लस concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? NO2 प्लस. या तो वो जाने वाला है एट दी ऑर्थो पोजिशन और इट विल गो एट द पैरा पोजिशन. तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या 2 नाइट्रो एनिसोल. एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा पीपल? पैरा नाइट्रो एनिसोल. मेजर प्रोडक्ट कौन है? पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट. एंड हमारा माइनर प्रोडक्ट कौन है? ऑर्थो. ये हमारा कौन सा रिएक्शन था? नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के बाद हम क्या करने वाले? सल्फनेशन. चलो तो टाइम बचाना है. सल्फनेशन में क्या यूज करेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट प्रोडक्ट, ऑर्थो पे SO3H एंड देन 1 in para. 2 methoxy benzene sulfonic acid, 4 methoxy benzene sulfonic acid. नाइट्रेशन, सल्फनेशन, लास्ट में हैलोजनेशन. यहाँ पे हम लेट्स से Cl2 और एक लुइस एसिड, एनहाइड्रस, AlCl3. यहाँ पे सबसे पहले ऑर्थो पोजिशन पे एंड देन पैरा पोजिशन प्लस 2 chloroanisole and 4 chloroanisole. Nitration, sulfonation, halogenation and last reaction Friedel-Crafts. Friedel-Crafts में फर्स्ट क्या होता है? अल्काइलेशन, ये हमारा एनिसोल प्लस क्लोरोमीथेन, अगेन एक लुइस एसिड, एनहाइड्रस, AlCl3. कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे? ऑर्थो एंड पैरा. टू मिथाइल एनिसोल एंड 4 मिथाइल. एंड अल्काइलेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा होता है? असाइलेशन. सो Friedel-Crafts, असाइलेशन. असाइलेशन में हम क्या यूज करते हैं पीपल? एथेनॉइल क्लोराइड, एसिड हलाइड, and
प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे हमें? ये असाइलियम आयन ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाई है असाइलियम आयन, इसको हम बोलेंगे 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन करने के लिए एक और असाइलेटिंग एजेंट है। वी कैन ऑल्सो यूज एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक, एंड प्रोडक्ट में हमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, बट अलोंग विथ द प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? इथेनोइक acid. This completes electrophilic substitution reactions. Getting that? However, there is still crown ethers and हमें और भी properties लिखने which I will share class के बाद. Thank you everyone. That is ethers one shot.